السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد صغیر اختر جان نگر گوٹیا۔ معظم بھائی، یہ پوسٹ جو آیا ہے اس کے بارے میں میں یہ آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جو اس میں سوال اور جواب دیے گئے ہیں صحیح ہیں کیا؟ اس کو شریعت کی روشنی میں جواب عنایت فرمائیں۔ میں اس پوسٹ کو ایک بار پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ سوال: میرا نام چاند نوری ہے۔ میرے ماموں اپنی بیٹی کی شادی ایک وہابی لڑکے سے کر رہے ہیں، لہذا میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ایک سنی لڑکی کا نکاح وہابی لڑکے سے ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اگر نہیں ہو سکتا تو آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب عنایت فرمائیں۔ نیز یہ بھی بتائیں کہ اگر میرے ماموں اس نکاح سے نہیں رکتے ہیں اور خاندان کے جو سنی حضرات ہیں اگر وہ اس شادی میں شرکت کرتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے شریعت کا کیا حکم ہے؟ جواب عنایت فرمائیں۔ الجواب: سنیہ کا نکاح یعنی سنی لڑکی کا نکاح وہابی سے جو عقائد کفریہ کے سبب مرتد ہو چکے ہیں، باطل مذہب ہیں، ہوگا ہی نہیں۔ وہابی جان کر سنیہ کو یعنی سنی لڑکی کو اس کے نکاح میں یعنی وہابی کے نکاح میں دینا زنا کے لیے پیش کرنا ہے کہ مرتدہ کا نکاح عالم میں کسی سے نہیں ہو سکتا، نہ ان کے ہم مذہب سے، نہ مسلمہ سے، نہ کافرہ سے، لہذا چاند نوری کے ماموں وغیرہ پر لازم ہے کہ ارادہ مذکورہ یعنی جو ارادہ انہوں نے کیا ہے باز رہیں، یعنی اس ارادے پر ہرگز عمل نہ کریں۔ اگر چاند کے ماموں اپنی سنیہ بیٹی کا نکاح کسی وہابی سے کریں گے تو نکاح نہیں ہوگا، اس میں شرکت کرنے والے وکیل گواہ نکاح سب کے سب اشد یعنی سخت گنہگار ہوں گے، اور اگر نکاح حرام کو حلال جان کر کریں گے تو امام کے ساتھ ایمان سے ہاتھ دھوئیں گے۔ مطلب یہ کہ وہابی کو مسلمان جان کر اس کی شادی میں شرکت دے رہے ہیں تو سب کے سب سنی حضرات تجدید ایمان، تجدید نکاح، تجدید مرید ہوں گے، یعنی پھر سے اسلام قبول کریں گے تب مسلمان کہلا جائیں گے۔ ارشاد باری تعالی۔ واللہ اعلم بالصواب۔ جواب عنایت فرمائیں۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں معظم بیگ رضوی ساکن محلہ بخارپورہ بریلی شریف سے بول رہا ہوں۔ اس پوسٹ میں جو سوال و جواب ہے وہ بالکل حق اور صحیح ہے، اور ہمارے بھائی نے اس کے لیے ثبوت مانگا ہے کہ ان سے نکاح کیوں نہیں ہو سکتا ہے، کیا وجہ ہے۔ تو دیکھیے، ایسا ہے کہ نکاح جو ہے وہ مسلمان کا مسلمان سے ہو سکتا ہے، کسی کافر سے مسلمان کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ جو وہابیہ دیوبندیہ اس قسم کے عقائد رکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے تو یہ کفر ہے۔ اس طریقہ کا اللہ کے بارے میں عقیدہ رکھنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر ایک عیب ماننا ہے۔ تو اسی طریقے سے ان کے مولوی نے یہ ان کے کتاب کی عبارتیں میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، اس کو بغور سماعت فرمائیں۔
इनके एक मुसन्निफ हैं, मौलवी हैं, जिन्होंने एक किताब लिखी है बराहिन कातिया। इसके मुसन्निफ हैं मौलवी खलील अहमद अम्बेडवी। इन्होंने लिखा है कि खुदा ताला झूठ बोल सकता है। अब आप अगर मुसलमान हैं तो आप खुद अपने दिल पर हाथ रख करके फैसला कीजिए कि जिस इंसान का ये अकीदा हो कि अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है, क्या वो मुसलमान हो सकता है? क्या उससे कोई मुसलमान निकाह कर सकता है? और अगर कोई मुसलमान अपनी जिद और हठधर्मी की बुनियाद पर निकाह कर ले तो क्या शरन उससे निकाह हो सकता है? दूसरी जगह उन्होंने लिखा है कि अल्लाह की शान ये है कि जब चाहे इल्म गैब दरियाफ्त करे। किसी वली, नबी, जिन, फरिश्ते, भूत को अल्लाह ने ये ताकत नहीं बख्शी। ये लिखा है मौलवी इस्माइल देलवी ने अपनी किताब में तक़वियतुल ईमान के अंदर। जबकि अल्लाह की शान यह है कि खुदा पाक हर वक्त आलिमुल गैब है, उसका इल्म उसकी सिफत है और वाजिब है। जब चाहे तब मालूम करने का मतलब ये हुआ कि ना चाहे तो जाहिल है, ये कुफ्र है। खुदा के सिफात खुदा के इख्तियार में नहीं, वो वाजिब है। नीज रब ने अपने महबूबों को भी इल्म गैब अता किए हैं। यानी अल्लाह तबारक ताला की जितनी भी सिफात है खुदा के इख्तियार में नहीं, वो वाजिब है। नीज रब ने अपने महबूब बंदों को भी इल्म गैब अता किए हैं। ये कुरान अजीम के अंदर मौजूद है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आपने ये सवाल किया है मेरे भाई, तो वैसे इनको जो है पोस्ट में हवाला भी देना चाहिए था कि इनसे जो है क्यों निकाह नहीं हो सकता। और ये पोस्ट भी मुझे अधूरा मालूम हो रहा है क्योंकि नीचे बड़ी बड़ी हेडिंग है कि इरशाद बारी ताला है, तो उसको भी जो है वो नीचे कुछ और होगा, ये पूरा नहीं है। लेकिन ये है कि जो हुक्म उसमें बताया गया है वो सही है। फिर उसके बाद है मोहम्मद कासिम नानोदवी जो है, इन्होंने अपनी किताब बराहिन कातिया में तहज़ीरुन नास में लिखा है कि खातिमुन नबी के मायने ये समझना गलत है कि हुजूर अलैहिस्सलाम आखिरी नबी हैं, बल्कि ये मायने हैं कि आप असली नबी हैं, बाकी आरज़ी। लिहाजा अगर हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद और भी नबी आ जाए तो भी खातमियत में फर्क ना आएगा। ये इन्होंने मौलवी कासिम नानोदवी ने लिखा है अपनी किताब तहज़ीरुन नास के अंदर। तो जबकि कुरान अजीम का इरशाद ये है कि खातिम नबी के यही मायने हैं कि इसकी तफसीर उलमा इकराम फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम आखिरी नबी हैं जो हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़माना ज़हूर या बाद में किसी असली और मिराखी मजाकी का नबी बनना मुहाल बिज़ात है। इसी मायने पर सब मुसलमानों का इजमा है और यही मायने हदीस ने बयान फरमाए। जो इस मायने का इनकार करे वो मुर्तद है यानी काफिर है। यानी कि हमारे नबी के बाद कोई नबी नहीं आ सकता। अब रहा यह कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी तशरीफ लाएंगे तो वो नबी की हैसियत से तशरीफ नहीं लाएंगे, बल्कि वो हमारे नबी के उम्मती होंगे, इस हैसियत से तशरीफ लेकर के आएंगे। तो हमारे नबी के बाद किसी नबी का आना और नबूवत का ऐलान करना ये मुमकिन नहीं है। और जो ऐसा अकीदा रखे वो अभी मैंने आपको बताया कि वो काफिर व मुर्तद है। और इनका कहना है कि इस्माइल देलवी ने अपनी किताब तक़वियतुल ईमान में लिखा है कि हुजूर अलैहिस्सलाम को भाई कहना जायज़ है क्योंकि आप भी इंसान हैं। ये मौलवी कासिम नानोदवी ने लिखा और इस पर तस्दीक करने वाले खलील अहमद अम्बेडवी हैं कि इन्होंने इस किताब की तस्दीक की है। तो जो ये कहे कि हुजूर को अपने भाई कहो और उनकी ताज़ीम बड़े भाई की सी करो बल्कि उससे भी कम करो, तो आप अपने दिल पे हाथ रख करके सोचिए क्या वो मुसलमान हो सकता है? क्या उससे मुसलमान का निकाह करना जायज हो सकता है? और अगर कोई कर ले तो क्या उससे निकाह हो जाएगा शरन? कभी नहीं होगा, हरगिज नहीं होगा। और इन्होंने दूसरी जगह लिखा है कि शैतान और मलकुल मौत का इल्म हुजूर अलैहिस्सलाम से ज्यादा है। यानी माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, शैतान को जो है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा इल्म है। और जो ऐसा अकीदा रखे वो शख्स मुसलमान नहीं, काफिर है। देखिए हमारे उलमा इकराम ने यही फरमाया। फिर इनके एक मौलवी हैं अशरफ अली थानवी के, जिन्होंने अपनी किताब हिफ्जुल ईमान के सफ़ा 8 पर लिखा है। ये सारी बातें मेरे सामने है जो मैं आपको पढ़ करके सुना रहा हूँ, ऐसा नहीं कोई हवाई बात कर रहा हूँ। कि हुजूर अलैहिस्सलाम का इल्म बच्चों, पागलों, जानवरों की तरह या उनके बराबर है। हिफ्जुल ईमान, मुसन्निफ मौलवी अशरफ अली थानवी। जबकि हुजूर अलैहिस्सलाम के इल्म के बारे में ऐसा कहना ये बिल्कुल खालिस कुफ्र और सरकार के इल्म
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म मुबारक पर की तौहीन है। तमाम मखलूक इलाही में बड़े आलिम हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम के किसी वस्फ पाक को अदना चीजों से तशबीह देना या उनके बराबर बताना सरी तौहीन है और ये कुफ्र है। यानी कि किसी भी चीज को, सरकार की अदना सी चीज को भी किसी कम तर चीज से तशबीह देना, उसकी मिसाल देना, ये तौहीन है हमारे सरकार की शान में। तो ये तो उनके इल्म पाक के जिनकी तारीफ खुदा पाक ने कुरान में की, और आला हजरत फरमाते हैं कि तेरे तो वस्फ ऐब है तनाई से बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रजा ने खत्म सुकन इस पे कर दिया कि खालिक का बंदा खल का आका कहूँ तुझे। तो आला हजरत सरकार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब इनके खिलाफ कुफ्र के फतवे दिए इन्हीं तमाम इबारतों पर, हाँ, और इन्होंने ये लिखा है कि हर छोटा बड़ा मखलूक, नबी और गैर नबी, अल्लाह की शान के आगे चमार से भी ज्यादा जलील है। तक़वियतुल ईमान ये भी मौलवी इस्माइल देलवी ने लिखा है। अब जरा बताइए कि हर इंसान को खुदा की बारगाह में चूड़े चमार से भी ज्यादा जलील कौन समझेगा? क्या किसी मुसलमान का ईमान इस बात को गवारा करेगा? इसमें क्या नबी की शान में तौहीन और गुस्ताखी नहीं है? क्या ये चूड़ा चमार इंसान नहीं है? अगर वो भी इंसान है तो फिर ये कहना कि खुदा के आगे, शान के आगे चमार से भी ज्यादा जलील है, तो इसका साफ मतलब यह है कि अल्लाह के जितने भी नबी हैं, जितने भी वली हैं और तमाम नबियों के सरदार हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, कि उन सब जो हैं वो चूड़े चमार से भी ज्यादा खुदा ताला की शान के आगे जलील है। क्या ये किसी मुसलमान का कलम लिख सकता है? क्या ये किसी मुसलमान की जबान या उसका दिल इसको कबूल कर सकता है? कभी नहीं करेगा। ये बातें सुनने के बाद हर मुसलमान यही कहेगा कि यकीनन बिला शक व शुबा ये लोग काफिर हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, एक जगह मौलवी इस्माइल देलवी ने अपनी किताब सिरातुल मुस्तकीम में लिखा है कि नमाज में हुजूर अलैहिस्सलाम का ख्याल लाना अपने गधे और बैल के ख्याल में डूब जाने से बदतर है। जरा सोचिए कि इमाम ग़ज़ाली और हमारे तमाम दूसरे बुजुर्गों ने फरमाया कि नमाज में, जब नमाज में पहुंचे, हुजूर अलैहिस्सलाम की अजमत का ख्याल ना हो, वो नमाज ही ना मकबूल है। इसीलिए अत्तहियात में हुजूर अलैहिस्सलाम को सलाम करते में वो भी कोई नमाज है यार ना हो, नमाज हो। यानी जब आप नमाज में पहुंचे, जब नमाज में अत्तहियात पढ़े और जब नबी के सलाम का वक्त आए तो अपने दिल में ये ख्याल करें कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बैठे, उनके सामने बैठे। ये हमारे बुजुर्गों ने हुक्म दिया। और ये मौलवी इस्माइल देलवी कहता है कि उनका नमाज में ख्याल आना अपने गधे और बैल से भी ज्यादा बदतर है। यानी गधे और बैल का ख्याल अगर नमाज में आ जाए तो नमाज फासिद नहीं होगी, लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल अगर नमाज में आ जाए तो इसके नजदीक नमाज फासिद हो जाएगी। तो आप जिन साहब ने ये सवाल किया है कि क्या वजह है कि उनसे निकाह नहीं हो सकता, आप खुद फैसला करिए कि इन तमाम बातों का कहने वाला शख्स क्या मुसलमान हो सकता है। और ये ऐसे नहीं कि आप मुसलमान थे, बल्कि वहाबी देवबंदियों के ये इमाम और पेशवा जिनके ऊपर अहले अरब व अजब ने कुफ्र के फतवे दिए और ये फरमाया कि इनके कुफ्र को जानने के बाद जो इनके कुफ्र में शक करे वो भी काफिर व मुर्तद है। तो निकाह करने वाला अगर इनके अकायदे कुफरिया से वाकिफ नहीं है और उसने निकाह कर लिया तो वो जो है उसके ऊपर हुक्म कुफ्र नहीं होगा, लेकिन वो गुनहगार जरूर होगा कि उसने तहकीक क्यों नहीं की जबकि उसको मालूम था कि वो देवबंदी है। लेकिन अगर वो उसके अकायदे कुफरिया से वाकिफ है और उसको मालूम है कि इन्होंने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की है, उसके बाद भी उनसे रिश्ता करता है तो फिर वो भी उन्हीं के हुक्म में है। तो अजीजान मिल्लत इस्लामिया, और फिर सबसे बड़ी बात, सबसे फाइनल बात मैं आपको बताता हूँ कि इन तमाम बातों को आप दरकिनार कर दीजिए। खुद वहाबिया के उसूल के मुताबिक भी हम सुन्नियों से उनका निकाह नहीं हो सकता, क्योंकि वो ये कहते हैं कि तुम लोग जो हो वो कबर पुज्जे हो, मुशरिक हो, काफिर हो। तो जब हम उनके नजदीक काफिर और मुशरिक ठहरे और कबर पुज्जे ठहरे तो मुशरिक कौन होता है? शिर्क करने वाला। अल्लाह तबारक तआला की जात और सिफात में जो कोई किसी को शरीक करे वो मुशरिक है, और शिर्क करना हमारी शरीयत में, इस्लाम में कुफ्र है। तो फिर उनके मजहब के उसूल के हिसाब से भी सुन्नियों का और वहाबियों का कभी निकाह नहीं हो सकता। इसलिए इसमें जो हुक्म दिया गया वो बिल्कुल सही है। वहाबी कौन होता है इससे भी आप खूब अच्छी तरीके से वाकिफ हो गए होंगे।
मेरा काम आपको बतलाना और समझाना था। हिदायत देना अल्लाह तबारक ताला का काम है। अल्लाह तबारक ताला हक को कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बाकी मेरे कहने में अगर कोई गलती कमी बेशी हुई हो, अल्लाह ताला उसको माफ़ फरमाए। मेरी जानी में, मेरी जानकारी में जितनी भी जानकारी थी वो मैंने आप तक पहुंचा दी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसी पर कायम हूँ। और मैं इस सवाल और जवाब में जो कुछ भी सवाल और जवाब हुए हैं, अगरचे इसमें कोई हवाला नहीं है मगर बिल्कुल सही है, मैं इसकी तस्दीक करता हूँ।